যে আমরা পিএফ পাই না, গ্র্যাচুইটি পাই না। পিএফ জমা হচ্ছে কি হচ্ছে না, আমাদের কাছে এসএমএস এ কোনো রকম ভাবে কোনো আপডেট আসে না। মালিক পিএফ এর টাকা জমা করছে কিনা, মাসে 800 টাকা, 1000 টাকা, অর্থাৎ প্রায় 1 বছর গেলে 15,000 16,000 টাকা করে আপনারা পিএফ পান। সেই টাকা সঠিকভাবে জমা হচ্ছে কি হচ্ছে না, কোনো রকম কোনো তথ্য আপনাদের কাছে নেই। আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি? ঠিক বলছি না ভুল বলছি? মায়েরা বলুন, যারা আছেন, পিএফ এর অভিযোগ আপনাদের রয়েছে, হ্যাঁ কি না? হাত তুলে বলতে হবে সবাইকে, হ্যাঁ কি না রয়েছে। গ্র্যাচুইটি নিয়ে আপনাদের অভিযোগ রয়েছে। আজকের এই সমাবেশ কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ নয়। সামনে কোনো নির্বাচন নেই, পুরসভা নেই, বিধানসভা নেই, লোকসভা নেই, পঞ্চায়েত নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচন তাও 1 বছর সময় রয়েছে। আপনি বলুন, আজকের এই সমাবেশ কি রাজনৈতিক সমাবেশ? ভোটের সময় যারা আসে বহিরাগতরা পরিযায়ী পাখির মতো, আর ভোটের পর যদি কাউকে দেখতে না পাওয়া যায়, তার উপর আপনারা আস্থা ভরসা রাখবেন? রাখবেন? আমি 12ই জুলাই জলপাইগুড়িতে এসেছিলাম, ধূপগুড়িতে। আমি কি বলেছিলাম? যে প্রত্যেক 2 মাসে আমি আসব। আর উত্তরবঙ্গ কথাটা নিয়ে আমার আপত্তি রয়েছে। কোনো উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, গৌড়বঙ্গ নয়। কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, দার্জিলিং থেকে দেগঙ্গা একটাই বঙ্গ, সে বঙ্গের নাম পশ্চিমবঙ্গ, অন্য কোনো বঙ্গ নয়। বিজেপির আর সিপিএম এর কিছু নেতাদের গায়ে জ্বালা হয়েছে যে অভিষেক ব্যানার্জি তো বলে চলে গেল, আর দেখা পাওয়া যাবে না। আরে আমি এক কথার ছেলে, যা বলি বুক ঠুকে বলে যাই আর তা করি। আমি বলেছিলাম প্রতি 2 মাসে আসবো, আপনাকে বলতে হবে না আমি আসবো। 12ই জুলাই এসেছিলাম, 2 মাস পূর্ণ হয়নি। 11ই সেপ্টেম্বর আজকে আবার জলপাইগুড়িতে আপনার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই সমাবেশ কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ নয়। এই সমাবেশ আমার কথা রাখার সমাবেশ। এই সমাবেশ আপনাদের জন্য আগামী দিন আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করার জন্য শপথ নেওয়ার সমাবেশ। এবং আমি যে কথাগুলো জানতে পেরেছি, আমাদের দলের লোক বা জেলা প্রশাসনের লোকের মারফত আমার কাছে সেই তথ্য বা কথা পৌঁছায়নি। আজকের এই সমাবেশ আমরা যে কারণে জড়ো হয়েছি আজকে, আপনাদের দাবি দাওয়া নিয়ে। আপনারা মানে তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা নয়, জেলার কোনো প্রতিনিধি নয়। আপনারা মানে খেটে খাওয়া শ্রমিকরা, সে সমস্ত মহিলা শ্রমিকরা যারা সকালবেলা কাঁধে আর ঘাড়ে বাচ্চাকে বেঁধে চাপাতা তুলতে বেরোন, সকাল 6টায় বেরোন আর সন্ধ্যে 7টায় বাড়ি পৌঁছান। তাদের জন্য আজকে আমাদের এই সমাবেশ। আপনারা মানে সে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যারা 15 দিন কাজ করার পর 15 দিনের হাজিরাটা পেতে না পেতেই এলাকার লোকাল যে মুদির দোকান, তার ধার শোধ করতে করতে সেই টাকাটাও আপনাদের ব্যয় হয়ে যায়। তাদের জন্য আজকের এই সমাবেশ। এই সমাবেশ তাদের জন্য যারা তীর্থের কাকের মতো চেয়েছিল কেন্দ্র সরকার কি করবে, আর আমাদের জন্য কবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প কেন্দ্রের সরকার ঘোষণা করবে। 2016 সাল, 2019 সাল, 2021 সাল নিজে প্রধানমন্ত্রী এসেছিল, এসে কি বলেছিল? আমার কাছে তো গ্যাজেট নোটিফিকেশন রয়েছে, আমি আপনাদের দেখাতে চাই। এই যে নোটিফিকেশন, 28শে জানুয়ারি 2016 সাল, তার আগে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিল যে যে সমস্ত বন্ধ চা বাগানগুলো আছে, যেমন বীরপাড়া চা বাগান, গড়গান্ডা চা বাগান, লঙ্কাপাড়া চা বাগান, তুলসীপাড়া চা বাগান, হুন্টাপাড়া চা বাগান, ধুমচিপাড়া চা বাগান, ডেমদিমা চা বাগান, এই 7টা চা বাগান কেন্দ্রের সরকার অর্থাৎ মোদী সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকার অধিগ্রহণ করবে এবং খোলার ব্যবস্থা করবে বলেছিল নরেন্দ্র মোদী, আর বাস্তবায়িত করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিজেপি যা বলে করে না, তৃণমূল কংগ্রেস যা বলে তৃণমূল কংগ্রেস করে। এটাই হচ্ছে পার্থক্য। আপনারা দেখুন 2016 আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আপনারা ভোট দিয়েছিলেন। 2019-এর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আপনারা ভোট দিয়েছিলেন। 2021-এর আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আপনারা ভোট দিয়েছিলেন। এবার বলুন তো, এবার যদি ভোট চাইতে আসে কি করবেন? কি করবেন? যদি বলে এই দেবো তাই দেবো, অধিগ্রহণ করব, চা শ্রমিকদের জন্য এত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কই 2 বছর আগে তো বাজেট করে বলেছিল আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য 1000 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রের সরকার, তার মধ্যে 10 পয়সা দেখতে পেয়েছেন কেউ? কোথাও এসছে? এখানে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যদি কেউ বলতে পারে 10 পয়সা এসছে সেই 1000 কোটি টাকার, আমি কাল থেকে রাজনীতি করব না, ছেড়ে দেবো। এত বড় কথা দায়িত্ব নিয়ে বলে গেলাম। এরা মিথ্যেবাদীর দল। আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আশীর্বাদকে পাথেয় করে যারা রাজনৈতিক স্বার্থে নিজেদের আচ্ছেদিন আনার জন্য কাজ করে, তাদেরকে আর ছেড়ে কথা বলা যাবে না। আমি আপনাদের বলতে চাই যে আপনাদের যে পিএফ আর গ্র্যাচুইটির দাবি, এই দাবি অত্যন্ত ন্যায্য, এবং আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে পিএফ আর গ্র্যাচুইটি রাজ্য সরকারের অধীনে পড়ে না, কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব। যদি কোনো চা বাগানের মালিক আপনাকে পিএফ গ্র্যাচুইটি না দেয়, এখানে শ্রমমন্ত্রী আছে, আমি শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আগামী দিন 3,83,000 চা শ্রমিক, এই 6টা চা বলায় যারা রয়েছে, তাদের সবার যেন আগামী দিন একটা করে আইডেন্টিটি কার্ড তৈরি হয়। 3 মাসের মধ্যে শ্রম দপ্তরকে সুনিশ্চিত করতে হবে। 3 মাসের মধ্যে। আজকে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর হলো পুজো, নভেম্বর, ডিসেম্বর, 31শে জানুয়ারির মধ্যে প্রত্যেকটা শ্রমিকের হাতে আইডি কার্ড পৌঁছে যাবে, আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি। 2, যারা পিএফ আর ইএসআই জমা করেনি, ট্রেড ইউনিয়নের যারা আমাদের প্রতিনিধিরা আছে, আমি তাদের অনুরোধ করব এই নিয়ে প্রত্যেকটা চা বাগানে গেট মিটিং হবে, লাইন মিটিং হবে, আন্দোলন হবে, এবং চা বাগানে যারা কাজ করে তাদের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস লড়বে, শ্রমিকের স্বার্থে, মালিকের স্বার্থে নয়। আমি হিন্দিতে বলে दी, यहां पे लेबर मिनिस्टर मौजूद है, मैं उनको ये कहा और उनको ये रिक्वेस्ट किया आप सबकी तरफ से कि आने वाले 3 महीने के अंदर कूच बिहार से लेके उत्तर दिनाजपुर तक जितना भी चा बागान है और जितना भी मेरा चा श्रमिक भाई बहन लोग वहां पे काम करते हैं, 3.5 लाख चा श्रमिकों को 3 महीने के अंदर एक आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए और सबको 3 महीने के अंदर यह आईडी कार्ड पहुंच जाना चाहिए। दूसरी बात, पीएफ और ग्रेचुइटी लेके आपका जो सजेशन है या आपका जो कंप्लेन है वो हमारे पास आया है, वो हमारे पास पहुंचा है, और मैं ये मानता हूं ये आपकी हक की कमाई है। कोई आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, मैं यहां कोई एहसान करने नहीं आया हूं, मैं आपको आपका हक दिलाने आया हूं, और मरते दम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक बार जो बोल दिया वो मैं करता हूं, और जो मेरे से नहीं होता है मैं आपको बोल दूंगा कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, बहन जी मुझे क्षमा करो, लेकिन जो मैं कहता हूं वो मैं करके रहूंगा। आपको मैंने बोला 31 जनवरी तक आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा तो मिल जाएगा, कोई माइका लाल कुछ भी करे रोक नहीं सकता है, मैं आपको ये यकीन दिला के जाता हूं। पीएफ और ग्रेचुइटी लेके आपका जो सवाल है, पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए, पीएफ और ग्रेचुइटी स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है, ये लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी जी का जो सरकार चल रहा है उस सरकार का काम है। यहां पे मीडिया वाले हैं, आप सबको दिखाई दे रहा है मीडिया वाले हैं। हो सकता है मैं मीटिंग करके चला गया,
बीजेपी वाले आए, बोले अभिषेक बैनर्जी तो भाई झूठ बोल के गया है। मैं जॉन बारला, निशित प्रमाणिक और जयंतो राय, तीनों जो सांसद यहां से जीता है, मैं चुनौती देके जाता हूं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं और एक बाप का अगर औलाद हो, मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल करके मुझे जेल में डालने का तैयारी करना। तीनों को चुनौती देके जाता हूं, मैं झूठ नहीं कहता हूं। पीएफ और ग्रेचुइटी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। अब हो सकता है कुछ लोगों के पास ये कंप्लेन आ रहा है कि भाई चाय बगान के जो मालिक है वो तो हमें पीएफ नहीं दे रहा है। और मैंने कहा पीएफ भाई बड़ा रकम है, कहीं 800 रुपए है, कहीं 1000 रुपए है, कहीं, और 800 रुपए तो आपका है, एम्प्लॉयर का भी तो है 800 रुपया। तो साल खर्च खत्म होने के बाद वो रकम 12, 15, 16 हजार बन जाता है और वो पैसा आप तक पहुंचता नहीं है। क्या ये पैसा आप तक पहुंचता है? क्या ये पैसा आप तक पहुंचता है भाइयों बहनों, पहुंचता है? जरा हाथ ऊपर करके बताना। पीएफ ग्रेचुइटी की पैसा पहुंचता है? पहुंचता है? हां या ना? ये पैसा चाहिए, हां या ना? इसके लिए संघर्ष करेंगे, हां या ना? जितना दूर जाना पड़े जाएंगे, हां या ना? मेरे बातों पे भरोसा करेंगे, हां या ना? जरा जोर से आवाज ऊंची करके बोलिए, दिल्ली हिलना चाहिए, हां या ना? ये पैसा आपकी हक की कमाई है, ये आपको मिलनी चाहिए, हां या ना? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और मैं ये ट्रेड यूनियन के सारे जितना भी तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेसिडेंट हो या यूनियन लीडर हो, मैं सबको ये अनुरोध करके जाता हूं कि कल से ये मुद्दा जमीन पे लेके हम लोग को उतरना पड़ेगा कि पीएफ और ग्रेचुइटी बीजेपी की सरकार को हर एक चाय श्रमिक के अकाउंट में पहुंचाना पड़ेगा। आने वाले 3 महीना का हम लोग समय देके इनको जाता है। और जहां पे चाय बगान की मालिक आपको पीएफ नहीं देता है, मैं लेबर मिनिस्टर यहां पे है, मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर जहां पे ऐसी स्थिति है कि जहां पे चाय बगान की मालिक जानबूझ के बदमाशी करके आपको पीएफ नहीं दे रहा है, ग्रेचुइटी नहीं दे रहा है, 3 महीने के अंदर सारा सिस्टम पे स्लिप वाइज होना चाहिए और सबको ग्रेचुइटी और पीएफ मिलना चाहिए। और जो चाय बगान में मालिक नहीं देगा, उस मालिक के खिलाफ और मैनेजर के खिलाफ पुलिस में जाके एफआईआर करना, और जो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो आने वाले दिन में होगा, कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको यकीन दिला के जाता हूं। যারা পিএফ আর গ্র্যাচুইটি পাচ্ছেন না, আমি তাদের অনুরোধ করব যে আগামী দিন যেখানে মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে পিএফ গ্র্যাচুইটি দিচ্ছে না, আপনারা যদি 3 মাসের মধ্যে পে স্লিপের বন্দোবস্ত করার জন্য আমি শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি। এটা হওয়ার পরও যদি পিএফ গ্র্যাচুইটি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো চা বাগানের মালিক না দেয়, তার বিরুদ্ধে লোকাল থানায় গিয়ে এফআইআর করবেন, ক্রিমিনাল কেস শুরু করে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করবে এবং সরকার যত দূর যাওয়ার যাবে তার বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা এবং শাস্তি আমরা দাবি করছি আজকে এই মঞ্চ থেকে। दूसरा, आप लोगों का बहुत दिन से एक डिमांड है कि भाई हम चाय बगान में जब काम करने जाते हैं, खास करके मेरी माएँ और बहनों की, कि जब चाय के बगान में हम काम करने जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको कंधे पे उठा के लेके जाता है, ना बच्चे को खिला पाता है, ना ध्यान रख पाता है। तो इनके लिए कुछ बंदोबस्त की जाए। इनके लिए बंदोबस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या माएँ बहनें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको लेके आपको काम करने में तकलीफ होता है कि नहीं होता है? होता है। आप देखो, देश का प्रधानमंत्री अपने आप को एक चाय वाला बोल के प्रधानमंत्री बन गया, और जिसके वजह से चाय बनती है उनके ऊपर कभी इन्होंने आंख उठा के नहीं देखा इसकी सरकार ने। प्रधानमंत्री बनने के बाद और भाजपा की सरकार सत्ते में आने के बाद अगर किसी के अच्छे दिन आया है, इन्हीं के आया है। आपके अच्छे दिन आए क्या?
जॉन बार्ला के अच्छे दिन आए। घर देखा है उसकी, मकान देखा है, देखा है कि नहीं देखा है? निशित प्रामाणिक का अच्छे दिन आए हैं। उसका दिल्ली का घर देखा है आपने? निशित प्रामाणिक का करोड़ों रुपया खर्चा करके मार्बल पैलेस बनाया है। ये किनके पैसा है? ये आपकी हक की कमाई है। ये लूट के लेके जा रहे हैं और अपने जेबें भर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री देश में अपने आप को एक चाय वाला बोल के प्रधानमंत्री बना, जिसके वजह से चाय बनता है, उसको उसके ऊपर एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा। आप ऐसे सरकार चाहते थे तो आपकी जो समस्या है कि बच्चों को ले जाना और कंधे में उठा के चाय पत्ती उखाड़ना और चाय पत्ती उठाना, 10 घंटा 8 घंटा काम करना, इसमें तकलीफ होता है कि नहीं होता है? तकलीफ होता है। तो इसका समाधान हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस साइड से बताइए, इसका होना चाहिए। आप इधर बताइए, होना चाहिए। इधर बताइए, होना चाहिए। और अगर समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं। समस्या है कि नहीं है भाई? है कि नहीं है? है। सब हाथ उठा के बोल रहे हैं। तो इसका हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 6 महीना के अंदर मैंने बात किया है और मैंने, जब मेरे पास ये खबर पहुंचा, मैंने मुख्यमंत्री से खुद बात किया। मुख्यमंत्री ने एक बार में डायरेक्शन दे दिया है लॉ मिनिस्टर को कि आने वाले 6 महीने के अंदर 50 बच्चों का क्रेश बनेगा, जिसमें 50-50 बच्चे रहेंगे पूरा चाय बागान इलाका में। अब कोई मां को बच्चों को कंधे में उठाकर चाय पत्ती उठाने के लिए जाने के लिए मजबूरी सहना नहीं पड़ेगा। यह मेरा वादा है आपको। एक एक क्रेश में 50-50 बच्चे रहेंगे, तो 2500 बच्चों का रहने का इंतजाम बाद में अगर जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग बढ़ाएंगे भी। 50 को 60 भी करेंगे, 70 भी करेंगे, 100 भी करेंगे। लेकिन 6 महीना के अंदर, अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक आपके 50 क्रेश बन जाएगा। यह वादा आज मैं आपको यहां से करके जाता हूं। एम्बुलेंस लेके आप लोग का कुछ डिमांड था, इसके साथ मुख्यमंत्री ने बोला, मैंने नहीं बोला, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अगर क्रेश बन रहे तो 2-3 चाय बागान मिला के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनेगा, जिसमें एडवांस ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस रहेगा, 10 बेड रहेगा, 20 प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी आने वाला 6 महीने में हम लोग बना देंगे। यह आप लोग का सवाल था कि नहीं? यह आप लोगों की मांग थी कि नहीं? तो देखिए, दीदी भले ही कलकत्ता में है, लेकिन दीदी को खबर आपकी ठीक है कि भाई चाय बागान में क्रेश अगर बन रहा है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनेगा और 6 महीना के अंदर बनेगा। ऐसा नहीं कि 2 साल, ऐसा नहीं कि 4 साल, ऐसा नहीं कि 5 साल, 6 महीना का समय मांग रहा हूं। इसके साथ साथ आप लोगों का एक मांग थी कि भाई जब चाय पत्ता का सीजन नहीं होता है, तब अगर हम लोग को कम चाय पत्ता उठाने को मिलता है तो हम लोग का तनख्वाह से, हम लोग का रोजगार से पैसा काट लिया जाता है। काट लिया जाता है कि नहीं? कितना रुपया काट लिया जाता है? कोई बताए कितना रुपया काटता है? जी, सब पैसा काट लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ है ना कि 24 केजी तक आपको उठाना पड़ेगा। 24 केजी के नीचे अगर आप उठाए तो हर केजी से आपको 3 रुपया उनको देना पड़ेगा। 3 रुपया आपकी पगार से काट लिया जाता है। यह होता है कि नहीं होता है? यह समस्या है कि नहीं है? जरा तेज बोलिए, बारिश तो शुरू हो गया, तेज बोलिए। तो इसका हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई कई जगहों पे मुझे जितनी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है कि अगर चाय पत्ती नहीं उग रही है तो हम उठाए कैसे? कहीं 14 केजी मिल रहा है, कहीं 15 केजी मिल रहा है, कहीं 16 केजी मिल रहा है, और आप 8 केजी का पैसा मेरे पगार से रोज काट ले रहे हो। ये तो नाइंसाफी है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैं
अनुरोध करूंगा सरकार की तरफ से, अगर लेबर मिनिस्टर इसको भी लेके एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग करे, क्योंकि लास्ट इसका ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुआ था 2005 साल में, जब सीपीआईएम पावर में था। तब बोला था कि भाई 24 केजी तक आप उठाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप ज्यादा उठाएंगे तो पर किलो आपको 3 रुपया ज्यादा मिलेगा, और अगर कम उठाएंगे तो आपका पगार से 3 रुपया काटता जाएगा। 1 किलो कम उठाए तो 3 रुपया काटेगा, 2 किलो कम उठाए तो 6 रुपया काटेगा, 3 किलो कम उठाए तो 9 रुपया काटेगा। ऐसा है या नहीं? देखिए ये नाइंसाफी है। कहीं अगर चाय पत्ती नहीं उग रही है तो इनमें मेरा श्रमिक भाइयों का क्या दोष है? ये तो चाय बागान का जो ओनर है या मैनेजमेंट है उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप दे ही नहीं पा रहे हो, फिर बोलो तुम तो काम नहीं कर पा रहे, तुम्हारा पगार से काटेगा। ये नाइंसाफी नहीं चलेगा। तो मैं मानता हूं अगस्त से लेके नवंबर तक, क्योंकि जनवरी फरवरी से तो चाय पत्ता का काम ठीक होता है, तब तो 30-30 केजी आप उठाते हैं एक दिन में। ठीक कह रहा हूं? अगस्त से दिक्कत होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने की दिक्कत है, 4-5 महीना है कि नहीं? अगर किसी की गलती के हिसाब से चाय पत्ती नहीं आ रहे तो जितने भी चाय बागान है उनको ये विनम्र रूप से कहा जाए कि भाई गलती अगर आपका है तो समाधान भी आप